Services, of course, starting off to a brilliant start, defeating Kerala yesterday in a 4-set game, and then Karnataka leading 2-0 and then losing out to Haryana. Our referees for the day, Mr. Rameshwar and Mr. Kushal. And Services did a brilliant job yesterday against Kerala. And to realize how good they were against Kerala, you should have watched Kerala play today against Haryana. Very dominant performance. There's our main referee, Rameshwar. Number 14, Karthik, We have two captain officials, of the team. referee 1 and referee 2, Number 15, and the line judges. Vinayak. Number 18, Varun GS. Number 20, Libro Hari Prasad. Coach Narayan Alwa. Team B, Services. There we have the Services lineup. Number 1, Niaz. This team Number being 2, coached by Shikhar. Rajesh Kumar, the chief coach, and being Number captained 7, by Saklen captain of Tariq. the team, Saklen. That's Team Number 9, Karnataka. Chirag. Number Team 10, Karnataka there on Shahil. your screens, being coached by Number Narayana 15, Alva Ayush. and Libro, being captained by Deepu. Karthik A. Coach Rajesh Kumar. Over to referees. Players to watch out for: Ashwal Rai, number 11, an international player in his own rights, and a very aggressive player on court. That's our coach and management from Karnataka, and here the coach from Services. All set to commence proceedings now. Services versus Karnataka, must-win game for Karnataka virtually. Also considering that Kerala has also tasted victory earlier today against Haryana. And if Karnataka want to maintain their presence in this tournament with an opportunity to qualify into the semis, they need to come up with a strong performance and take a W against Services. Right away spotted, coming into the game, the second official. Spotting that net touch. Saklen with that service for Services. Nice offense, and like I said, the danger player, Ashwal Rai, playing as the center, receives, sends it to the setter, and then finishes it nice and strong. Good double block there by Services.
Both these teams yet to set their offensive patterns in play. Lot of struggle. And a nice high hot set there at zone 4. And the double block equally emphatic. Services 2, Karnataka 1. Warren with that floating serve. Zone 2 offense, really strong there. Sahil Kumar, so close to the antenna. And the second blocker, the center blocker, arriving a little late, giving him that opportunity to get a touch out. Another floating serve, this time at the libero. Trying to go for the counter, could have been patient. Probably that ball was drifting out as well. There you see that lift, probably that ball could have been drifting out. Or he had the opportunity to settle and go for a planned offense. Nice finish. Ashwal Rai, the spearhead of this Karnataka team. On that first tempo, it's called first tempo because the attacker's first step is already in play as the setter comes into action. Trying to go for a wave offense there. The combination not working. You can see the first wave and the second wave a little late. Good defensive positioning by Karnataka as well, covering all those angles. Ashwal to serve now. Good double block. You don't really expect that considering Tarun Gowda is there as the left blocker. Not very tall, but getting tremendous elevation. Interesting play there. You can see that set triple block right in front of him. And the blockers will be disappointed when you have all three blockers right in front of the spiker. They should have done a better job. Sahil now with the serve. This time Tarun makes no mistake. Likes to operate from zone 4. There you can see the set. Creating that angle, slicing the ball. Sakleen, good set once again. This time you have to blame the attacker. It was a good set. Probably could have gone for power with a diagonal spike. Caught in two minds. This time the wave works to a perfection. You can see the first wave and then backline Chirag pummeling that spike. Sakleen trying to be too cute, but equally aware were the blockers. You can see on your screen Sakleen trying to be cute and passing that ball onto the other side, but the blocker was intent on sending the ball across.
And realizing there's some momentum picking up for Karnataka, service is taking a timeout. And always nice to see the discipline and the calmness that this services side shows under their able captain, Tariq. Karnataka giving a good account of themselves in this first set. Free spike. Beautifully orchestrated by Tariq. Setting that ball up, a high ball. You can see the blockers were ready for the zone 4 attack, but the set beautifully created on zone 2. And Sahil obliges. Nias there with the service for services. You can see an unnecessary spike there. Good hustle. And probably should have just sent that ball across. Putting in a little too much there, Tarun. That's the reason why services is trailing. The gameplay has been really good, but the amount of these unforced errors through services or defensive lapses, that is what has been giving Karnataka an opportunity in the early stages of this set. Good serve. What a powerful spike. The blockers were there, but off the ball, the blockers' movement brilliant. Both of them in tandem, but unfortunately the ball landing outside. Exactly what we were talking about. They need to reduce these errors, these unforced errors creeping into their service game, especially when you're going for a floating serve. It's understandable when you're going for a jump serve to make an error like this, but for a floating serve, it's a cardinal sin. Showing how it's done for Karnataka. The captain coming to the fore, Karthik, serving an ace. This time there's no stopping that spike from zone 4. A little disappointment for Karnataka. Ganesh got his hands to that spike. There you can see a brilliant spike. And on the defense, Ganesh got his hand but couldn't lift up that ball. The captain on your screen now. In ball. There you can see the fake and then Pawan coming from behind. Well done. Left-handed service. Good hustle to keep the ball in play. Services now with an opportunity to cut that lead. No mistake there. Just as we called it, Sahil Kumar. One-on-one with the blocker, finding the right amount of space. Welcome back, Ashish. Close game, and surprisingly, services trailing by 3. So what we were discussing about, in the previous match, आज का जब दिन समाप्त होगा तो मज़ा आएगा बिकॉज सभी टीम्स के जो पॉइंट्स रहने वाले हैं, अगर कर्नाटक जीती है तो बराबर पॉइंट्स मिलेंगे और अगर
सर्विसेज जीतती है तो उनका जो सेमीफाइनल पहुंचने का जो रास्ता है, दे विल बी वेरी क्लोज टू द सेमीफाइनल मैच। इस मैच की अगर बात की जाए तो कर्नाटक फिलहाल जबरदस्त तरीके से अपने परफॉर्मेंस से अपने ओपोनेंट पर हावी हो रही है, लेकिन सर्विसेज को इतना आसान नहीं लेना चाहिए। जोन 4 से अटैक था, ब्लॉकर के हाथ से लगी बॉल और कोर्ट से बाहर गई। एक बार फिर टीम के सेंटर ब्लॉकर्स के बीच ये टक्कर देखने को मिली। फर्स्ट टेम्पो ने अपने ओपोनेंट टीम के सेंटर ब्लॉकर के हाथ पे बॉल को हिट किया और बॉल कोर्ट के बाहर गई। कंट्रोल नहीं कर पाए आयुष थे इस बार। ओपन बॉल था, सेंटर से बैकलाइन अटैक। जितनी तेज आवाज आ रही है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ से बॉल को हिट किया गया था। जोन 6 से जो अटैक होता है अलग ही नजारा रहता है। टीम के काउंटर्स जो हैं वो करते हैं ये अटैक, और फिलहाल 1 पॉइंट और सर्विसेज के लिए। एक बार फिर ब्लॉकर के हाथ पे लगी, टच करवा कर बाहर निकाला। रामेश्वर चौहान का ये फैसला। स्टाइलिश रेफरी हैं ये, जितने खूबसूरत दिखते हैं उतने ही बढ़िया इनके डिसीजन होते हैं। हिमाचल के रहने वाले हैं और फिलहाल अपने अनुभव को यहां पर दर्शाते हैं। वो जिस तरीके से प्लेयर्स इंटरनेशनल लेवल के होते हैं उसी तरीके से जो रेफरीज हैं ये भी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में भारत को रिप्रेजेंट कर चुके होते हैं और इनकी मौजूदगी 4 चांद लगाते हैं इस मुकाबले में। फिलहाल सर्विसेज टीम के कोच थोड़े चिंतित जरूर होंगे। कल इन्हें जीत मिली थी एक रोचक मुकाबले में। हर आयु के दर्शक मौजूद हैं, ये एक अच्छा साइन है इस खेल के यहां पर आयोजन होने का। फिलहाल 2 पॉइंट्स का डिफरेंस है और सर्विसेज अपनी सर्विस को कंटिन्यू रखेंगे। फर्स्ट टेम्पो पे 2 ब्लॉक्स आ रहे हैं। ओहो, इस बार टच करवाकर बाहर निकालने की कोशिश थी, लेकिन साइड ब्लॉकर ने अपने हाथ ही खींच लिए। चतुराई दिखाई साइड ब्लॉकर ने। देखिए, टच करवाकर बाहर निकालना था और ब्लॉकर ने हाथ ही ऊपर नहीं किए। फर्स्ट टेम्पो को यूटिलाइज किया। तेज तरार स्मैश था ये। आयुष एक बार फिर। टीम के सेटर जिस तरीके से प्लेयर को रोटेट कर रहे हैं, बॉल फीडिंग कर रहे हैं। सकलेन तारिक टीम के कप्तान भी हैं और कल इनकी योजनाएं जो थी वो काफी हद तक कारगर सिद्ध हुई केरल के विरुद्ध। हल्का हाथ रिसेप्शन ब्रेक करने की कोशिश, लेकिन अंक दे बैठे। 17वां अंक मिला कर्नाटक की टीम को। हाई पास है, डबल ब्लॉक है और बढ़िया डिफेंस। कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है। शॉर्ट पास की बदौलत यहां पर अंक मिलता हुआ। सत्रह 15 का स्कोर हो चुका है। 2 पॉइंट्स का डिफरेंस है और फिलहाल यहां से मुझे लगता है सर्विसेज ने वापसी का ऐलान कर दिया है। सर्विस इनके पास है। रिसेप्शन अगर ब्रेक होता है तो इनके लिए एडवांटेज रहेगा, लेकिन कर्नाटक टीम आज फर्स्ट पास की बदौलत कॉम्बिनेशन के जरिए दबाव डालने में कामयाब हो रही है। जिस भी टीम का फर्स्ट पास अगर ब्रेक नहीं होता
तो 50% काम तो उनका हो जाता है, बिकॉज वो कॉम्बिनेशन अटैक करते हैं। बैक जोन अटैक था, डबल ब्लॉक था, डबल ब्लॉक को कुछ नहीं समझा और बदले में 1 पॉइंट और लेके 3 पॉइंट्स का डिफरेंस बना लिया है। फिलहाल यहां से मुझे लगता है कि सब्स्टिट्यूशंस जो हो रहे हैं ये इनकी टीम के लिए कारगर तभी सिद्ध होंगे जब जो प्लेयर अंदर आ रहा है वो डिफेंस में या सर्विस में कंट्रीब्यूट करे। बढ़िया डिफेंस। इस पॉइंट का श्रेय मिलना चाहिए जिस खिलाड़ी ने इस बॉल को उठाया था। शॉर्ट पासेस को डिफेंस करना इतना आसान नहीं होता, इन्होंने डिफेंस किया और इनको श्रेय मिलना चाहिए इस पॉइंट का। और जब उठी हुई जो बॉल होती है उस पर अटैक होता है, नया जोश उसमें देखने को मिलता है। 4 पॉइंट्स का अंतर है। फिलहाल कर्नाटक की टीम आगे इस मुकाबले में। बढ़िया लिफ्टी। टीम के कप्तान सकलेन तारिक जो भी वॉलीबॉल खेलना जानते हैं वो अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां से जोन 2 पे बॉल बनाना इतनी एक्यूरेसी से ये कोई आसान काम नहीं। और सर्विक्स पर क्या रिसेप्शन ब्रेक कर पाएंगे। उठा हुआ बॉल है, डबल ब्लॉक और जोन 4 पे डायगनली हिट किया कर्नाटक की टीम ने और अपने डिफरेंस को बढ़ा लिया है। गलती की ये क्रूशल पॉइंट इनके लिए महंगा साबित हो सकता है। 3 पॉइंट्स का डिफरेंस जो था अब हो गया है ये 5 का हो सकता था अगर कर्नाटक उस पॉइंट को लेती, लेकिन सर्विसेज के लिए एक सुनहरा अवसर है। अगर अपनी सर्विस पे 2 पॉइंट्स लेते हैं तो इनके लिए एडवांटेज हो सकता है। कॉम्बिनेशन था, वेव बॉल था, सेंटर मीडियम पास और बदले में 1 पॉइंट कर्नाटक के लिए। फर्स्ट पास अच्छा रहेगा, आपका 50% काम उसी में हो जाता है। डबल ब्लॉक लेकिन रोकने में असफल। चिराग थे इस बार अपनी टीम के लिए। जोन 6 से बैकलाइन अटैक था, पावरफुल स्मैश था। और सर्विस नेट पे मारना भी अपने आप में दिलेरी दिखाने के बराबर है, बिकॉज ये प्लेयर पूरा जोखिम उठा रहे हैं। अगर आप सेफ क्रॉस कराएंगे, उन्हें मालूम है कि कर्नाटक का कॉम्बिनेशन बदले में उन्हें एक जोरदार अटैक दे सकता है, लेकिन रिस्क ले रहे हैं सर्विस पे। और ऐसे में प्लेयर हमेशा डबल माइंडेड रहते हैं। सेफ कराएंगे, फर्स्ट पास ब्रेक नहीं हुआ ओपोनेंट का तो कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, और अगर रिस्क लेते हैं तो सर्विस खराब होने के चांसेस भी रहते हैं। फिलहाल 22-19 का स्कोर है। बैकलाइन अटैक, इतनी दूर से अटैक था, काफी देर से रिएक्शन देखने को मिला कर्नाटका के डिफेंस का। तो फिलहाल 2 पॉइंट्स का डिफरेंस है। सर्विस पे अगर पॉइंट लेते हैं तो इनके लिए एक बड़ा एडवांटेज हो सकता है। पहला सेट चल रहा है इस मुकाबले का।
इंपॉर्टेंट रहेगी। सेंटर से बैकलाइन अटैक, इस खिलाड़ी की तारीफ करनी पड़ेगी। चिराग सुरेश कुमार है ये। जोन 6 से अच्छी स्कोरिंग और मजबूर किया कर्नाटक टीम के कोच को कि वे टाइम आउट लें। 22-21। बाईस 21 का स्कोर है और यहां से खतरे की घंटी कर्नाटक के लिए बज सकती है अगर ये ब्लॉक डेड होता तो। लेकिन कर्नाटक अब थोड़ा सा सेफ जोन में आ चुकी है। जो स्कोर 22 बराबर हो सकता था, अभी 23-21 हो गया है। डबल ब्लॉक था, पावरफुल स्मैश था और बॉल कोर्ट के बाहर गई। आर्क बॉल। इनको मालूम है कि जो साइड ब्लॉकर हैं उनका हाइट कम है, इसलिए एंटीना तक बॉल दे रहे हैं ताकि ब्लॉक जो अटैकर हैं उनके ऊपर से हिट करें और उनका सक्सेस रेशियो थोड़ा सा ज्यादा हो। अभी भी क्लोज एनकाउंटर है। 23-22 का स्कोर। एक एक पॉइंट जो है वो बहुत ही ज्यादा अहम और महत्वपूर्ण है। डबल ब्लॉक, सर्विसेज के लिए एडवांटेज है यहां पर। राइट बॉल। यहां पर रिबाउंड कलेक्ट करना बहुत मुश्किल काम होता है। अक्सर जो प्लेयर रिबाउंड कलेक्शन के लिए आते हैं वो अटैकर के नजदीक होते हैं, लेकिन बॉल अगर पीछे की तरफ जाती है तो थोड़ा टफ होता है रिबाउंड कलेक्ट करना। लेकिन ये बॉल उठ सकती थी। कंफ्यूज्ड थे सर्विसेज के प्लेयर की शायद ये बॉल आउट ना हो। तो 24 पॉइंट्स ले लिए हैं कर्नाटक की टीम ने। टाइम आउट्स आपने ले लिए हैं पूरे। एक सेट में आप 2 टाइम आउट ले सकते हैं और वो टाइम आउट जो हैं वो सर्विसेज ने पूरे कर लिए हैं अपने। इसकी उम्मीद किसी को ना थी। इस तरीके से ये मुकाबले का पहला सेट समाप्त होगा। ये सर्विसेज ने भी नहीं सोचा होगा कि टीम के सबसे मजबूत डिफेंसिव प्लेयर से आप एक एस के जरिए पॉइंट लेंगे और 25-22 पर ये पहला सेट समाप्त हो चुका है। आज रविवार का दिन है और ये कुर्सियां अब धीरे धीरे भरने वाली हैं। भावनगर के लोगों में इन नेशनल गेम्स को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह है और ये पहले सेट का स्कोर 22-25 एक क्लोज एनकाउंटर था। 21-22 पर थी दोनों टीम्स, 22-23 पर थी दोनों टीम्स और उसके बाद सर्विसेज की टीम 22 पर रुकी और 3 पॉइंट जल्दी जल्दी लिए कर्नाटक ने और इस पहले सेट को जीतकर 1-0 की बढ़त इन्होंने ले ली है।
कोचेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि जब ऐसे क्लोज मैच होते हैं उसमें अगले सेट में जब आप जाते हैं क्या परिवर्तन करेंगे अपनी टैक्टिक्स में, अपनी योजनाओं में। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि जो गलतियां की हैं उसको अगर आप कम करते हैं, अगर 3 गलतियां ना करते सर्विसेज के प्लेयर्स, तो शायद ये मुकाबला बराबरी पर आ सकता था। 23-23 और 24-24 का स्कोर हो सकता था। इससे पहले खेले गए मुकाबले में हरियाणा को केरल ने शिकस्त दी थी। इस ग्रुप बी में केरल एक मैच जीत चुकी है, हरियाणा एक मैच जीत चुकी है, सर्विसेज की टीम ने एक मैच जीता है और कर्नाटक के पास अभी तक एक भी जीत नहीं है। और अगर आज ये टीम जीतती है यहां पर तो सभी टीम्स के पास एक जीत होगी और एक हार होगी। विपिन, प्रेडिक्शंस जो हैं इस मुकाबले में करना मुझे लगता है बहुत टफ रहेगा। ये मुकाबला किसी भी तरफ करवट ले सकता है। Absolutely, Ashish, especially what we have seen yesterday. Karnataka running off to wins in the first 2 sets and then losing out. Remains to be seen whether Karnataka can make amends in today's game. And quite honestly, services is a much more complex opponent to face against. Suckling to start off proceedings for services. Down the line, spike. This is the reception advantage we talk about. And nowadays in volleyball, it's the receiving side that comes up with the advantage. Backline attack. The captain. Nice block. Karnataka need to play with that aggression that they brought out in that first set. Yesterday, what we noticed after the first 2 sets, that aggression dipping and opponents capitalizing on it. Haryana on that occasion. And I'm sure the coach has told his players to keep that same level of aggression, that same drive, determination going for the duration of this contest. Nice opportunity, but equally strong was that block. The ball was set really well, but Ayush keeping a close eye on that spiker and bringing those arms down. Beautifully judged, watching it right to the very end, watching it float by. And it's not easy in such a high pressure situation. Letting a ball go is almost as difficult as spiking it. No problems there for this play by services.
Blockers were in play, but not able to direct the ball down. Well done. Good hustle there by Saklane at the net. You can see him follow the arch of the ball. And realizing that the ball was over, going for that block. Here's Ashwal. Well done indeed. Wasn't an easy opportunity. Lot of pressure on that serve. And Ashmatullah finishing smoothly there. Vikas and Saklane were creating that block there. There you can see blockers there ready. But the power on that spike was such that sends the ball flying outside. Wave attack. This time Chirag obliges for that set by Saklane. So close was Ashmat, catching the tape on that occasion. And so dominant has been Karnataka that services deciding to up the tempo on these services, going for more power, trying to disrupt that first pass. Saklane, first tempo set, so brilliantly done. What a combination with Vikas. Both of them on the same wavelength, Tariq and Vikas, not allowing the blockers to set. Too good. Reaching behind him, fetching the ball, and with an extra seconds pause as the blockers went down, spiking it down the line. That's the excitement that kind of spike generates. Well done. Here comes Saklane now. Well set, creating that opportunity. It's that high arching ball that created the opportunity for Sahil. Well done. Using the experience, using the abilities of Ashwal, right down the middle. And some deception in that setting required to create that space for him. So you had only the single blocker up against him. And when you give him only one blocker to beat, usually Ashwal comes out trumps. Must be disappointed. Ashwal was there to block it, but not able to get the ball across. Beautiful, not just power, but placement. Utilizing this rotation to their advantage. Placing it beautifully on zone 2. Right down the middle. Keep it simple when things are getting complicated.
using Ayush, an international player in his own right. And it's like Ayush saying, thank you, Sahil. Give me an opportunity. And this time the ball just behind Sahil. And Sahil was attacking the line a little closer and realizing that there is some space behind him. Good execution. अश्वल राय कर्नाटका के लिए जंप सर्विस, वेव अटैक इस बार चिराग का बैकलाइन से ऑफेंस लाए। देखिए वेव था और फिर पीछे की सेकंड वेव में आए चिराग, जबरदस्त प्रहार। जबरदस्त पावर स्पाइक में, बॉल गई बहुत ऊपर। प्लेयर इंटरेस्टेड जरूर थे पर टेक्निकल एरिया के बाहर गई बॉल। बढ़िया कॉम्बिनेशन था वहां पे जरूर, पर बॉल को अंदर नहीं रख पाए विकास मान। देखिएगा आपके स्क्रीन पे बॉल बनाई बहुत बढ़िया सकलेन ने वहां पे, पर डबल ब्लॉक था उनके सामने और टच आउट लेने की कोशिश में बॉल गई बाहर। यहाँ पे जस्ट आउट बैकलाइन अटैक था। सर्विस लाइन को कर रहे थे वो टारगेट और बॉल हल्की सी बाहर ड्रिफ्ट हुई। और लाइन जजेस को अप्रिशिएट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम देखते हैं ये सब स्लो मोशन पे और लाइव पे वो कॉल देते हैं। ये 100 माइल्स के करीब कभी कभार ये स्पाइक्स ट्रैवल करती हैं। चिराग की लेफ्ट, बढ़िया फिनिश वहां पे। जोन 4 पे छाए हुए हैं आज असमतुल्ला। जगह बनाई, लीप लिया और एक ही ब्लॉकर थे उनके सामने, कोई गलती नहीं। अजमत की सर्व टिपिंग करती हुई वहां, और उसी वैक्यूम को यूज किया क्योंकि डिफेंस इतना सैग कर रहा था पीछे। आप देखेंगे जो बैकलाइन थी इतना स्पेस छोड़ रखा था बीच में और अटैकर ने उसी स्पेस को किया यूटिलाइज। बढ़िया, बहुत बढ़िया सेटिंग वहां पे। सकलेन ने देखिए रीड किया वहां पे, इमीडिएटली शॉर्ट सेट बनाया और ऑब्लाइज किया वहां पे उनके टीममेट ने उन्हें। शफीक का वो फिनिश, opportunity and opportunity works for the brave। देखा कि ब्लॉक था पर फिर भी छा गए उनके ऊपर। पॉइंट निकाला ये कर्नाटका के लिए। 3 point cushion आशीष as we move into the real game time of this set, and remains to be seen whether services can make a comeback। ब्लॉकर के हाथ पे लगी बॉल और कोर्ट के बाहर गई। तो जो 3 पॉइंट्स का डिफरेंस था अब वो 2 पॉइंट्स का रह गया है। डबल ब्लॉक था, स्टे था थोड़ा सा जम में, ब्लॉकर के हाथ पे लगी और बाहर गई। कॉम्बिनेशन था, ये बॉल थोड़ा सा रोका ताकि जो ब्लॉक है वो डिस्टर्ब हो।
जोन 4 और जोन 3 के बीच में बिल्कुल रोका गया था बॉल, ताकि जो ब्लॉकर्स थे वो कंबाइन ना हो पाए और जो उसके बीच में गैप था उसको यूटिलाइज किया गया। 16-13 का स्कोर, कर्नाटक अभी भी आगे इस मुकाबले में। पावरफुल स्मैश था, मंशा पहले ही जाहिर कर दी थी इन्होंने अपनी। टच हुई ब्लॉक से और बाहर गई। दोनों टीम के अटैकर्स का योजना जो है अभी तक पिछले 3 पॉइंट में यही देखने को मिला। पावर की बदौलत ब्लॉकर्स के हाथ पे हिट कर रहे हैं और बॉल कोर्ट के बाहर जा रही है और चेंज हो रही है लगातार। ये कर्नाटक के लिए तो अच्छी चीज है, लेकिन सर्विसेज की टीम को ये रिदम ब्रेक करना पड़ेगा अगर उन्हें वापसी करनी है इस मुकाबले में। वही योजना, स्पीड कम और पावर ज्यादा इस्तेमाल की जा रही है फिलहाल इस मुकाबले के इस सेट में। 2 पॉइंट्स का डिफरेंस है और सर्विसेज के लिए इस रिदम को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। जोरदार अटैक इस बार, टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं ये। बिना गलती किए 1 अंक लिया। अश्वल राय करंट इंडियन टीम का हिस्सा है ये। बढ़िया अटैक इस बार, पावर कोई भी खिलाड़ी कम नहीं करना चाहता और करना भी नहीं चाहिए। जितना मजा आता है तेज तरार हिट्स को देखने में, पूरा लुत्फ उठा रहे हैं हमारे दर्शक इस मुकाबले के इस सेट का, जहां पर पावर वॉलीबॉल जो होता है उसका एक एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है। कोई टैपिंग नहीं, कोई ड्रॉप नहीं, तेज तरार हिट्स और लगातार चेंज हो रही है सर्विस। कॉम्बिनेशन था इस बार, फर्स्ट पास किसी भी टीम का ब्रेक नहीं हो पा रहा। सर्विस को थोड़ा और इफेक्टिव करना पड़ेगा क्योंकि दोनों टीम्स का जो फर्स्ट पास है वो ब्रेक नहीं हो रहा और जिसके फलस्वरूप ये कॉम्बिनेशन अटैक देखने को मिल रहा है। टच होके बाहर गई बॉल, डिफेंस थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। बॉल और डिफेंस के बीच में अगर ब्लॉक नहीं होता तो शायद ये बॉल डिफेंस के हाथ में जाती। ब्लॉकर के हाथ से लगी, डिफ्लेक्ट हुई बॉल और कोर्ट से बाहर। ये बॉल उठ गई है, क्रूशल पॉइंट हो सकता है ये, और ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। लगातार जो दोनों टीम्स चेंज ले रही थी, सर्विस को आवश्यकता थी कि एक पॉइंट ले अपनी सर्विस पे और वो पॉइंट इन्हें मिल गया है। तो अब जो डिफरेंस है वो केवल 1 अंक का, जिसने मजबूर किया कर्नाटक टीम को एक टाइम आउट के लिए। टाइम आउट टेकन बाय कर्नाटका। हरियाणा टीम के कोच और इनके प्लेयर्स जो हैं ये इस मुकाबले को देख रहे हैं, बिकॉज हरियाणा का भी एक लीग मैच होना बाकी है। केरल के विरुद्ध इन्होंने अपना मुकाबला खेल लिया, आज इन्हें हार मिली। कल सर्विसेज के विरुद्ध
केरल को जबरदस्त मुकाबले में शिकस्त मिली थी और अभी फिलहाल इस मैच में डबल ब्लॉक और तेज तरार हिट, 2 पॉइंट्स का डिफरेंस। Now substitution by Single block. Karnataka team. दोनों कंबाइंड जो ब्लॉक Number था 50 वो now. नहीं रोक पाया इस अटैक को। Number 1 is in. हरियाणा ने कल कर्नाटक पर जीत दर्ज की थी। सिंगल बॉल, आर्क बॉल था ये। तारीफ करनी पड़ेगी सेटर की कि अच्छा कॉम्बिनेशन दिखाया, फर्स्ट पास बढ़िया था और तेजी से बॉल को मूव किया जोन 4 की तरफ। Now substitution by Karnataka team. दोनों ब्लॉकर जंप कर Number गए 15, और आगे केवल number एक 1 ही is out. ब्लॉकर मिला। डिफेंस करना पड़ेगा, बॉल उठानी पड़ेगी, उसी की बदौलत आपको अंक मिलेंगे और अपनी सर्विस पे जब तक आप पॉइंट नहीं लेंगे इस मुकाबले में वापसी करना बहुत मुश्किल काम है। 21-19 का स्कोर, कर्नाटक आगे इस मैच में। डबल ब्लॉक और उसके बावजूद बॉल को हिट किया। अश्वल राय अंदाजा नहीं लगा पाए। बीस 21 का स्कोर, सर्विसेज टीम क्लोज आ चुकी है। ये बॉल डिफेंस हो गई है, क्रूशल पॉइंट हो सकता है ये, और डिफेंस पर दोनों टीम्स के प्लेयर दमखम लगा रहे हैं। सर्विसेज के कोर्ट में गिरी बॉल, एडवांटेज मिलेगा कर्नाटक को 1 पॉइंट का। 22 पर जा चुकी है ये टीम एक बार फिर से, 2 पॉइंट्स का डिफरेंस इन्होंने बना लिया है। अच्छा डिफेंस था लेकिन कामयाबी सर्विसेज को मिली, बॉल क्रॉस नहीं हो पाई। दूसरी बार और तीसरी बार में बॉल क्रॉस नहीं हो पाई, इसलिए फायदा मिला सर्विसेज को। क्रूशल पॉइंट रह सकता है ये, सर्विसेज के लिहाज से 1 पॉइंट लेना इनके लिए बेहद आवश्यक है। एक बार फिर बॉल तो डिफेंस हो गई है, डबल ब्लॉक है और दोनों तरफ से बढ़िया डिफेंस हो रहा है। ये डिफेंस भी हो गया, इस बार कामयाबी, सर्विसेज ने बराबरी हासिल कर ली है इस दूसरे सेट में। प्रशंसा करनी पड़ेगी कर्नाटक की भी कि इतनी ओपन बॉल्स को वो डिफेंस कर रहे हैं, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। और अगर किसी अटैकर की 2 बॉल डिफेंस हो जाती हैं, उसका मनोबल जो है वो चकनाचूर हो जाता है। और दूसरा टाइम आउट यहां पर कर्नाटक के कोच ने ले लिया है। 22-22 का स्कोर है। सर्विसेज की टीम फिलहाल वापसी का ऐलान कर चुकी है इस मुकाबले में।
रिदम में आ चुकी है सर्विसेज की टीम, लेकिन कर्नाटक की टीम, उनके पास एडवांटेज है उनके अनुभवी खिलाड़ियों का। ये बॉल फिर से डिफेंस हो गई, ट्रिपल ब्लॉक है और नेट कॉन्टैक्ट उससे पहले ही हो गया। एक्साइटमेंट इतना ज्यादा था कि ब्लॉकर्स ये भूल गए कि सामने नेट भी है। जंप करते समय यहां पर हुआ था नेट टच और फायदा मिला सर्विसेज टीम को। टाइम आउट समाप्त हो सकते हैं कर्नाटक टीम के, विकल्प कुछ नहीं है, सब्स्टिट्यूशंस ले सकते हैं वो। एक और ब्लॉक, टच करवाकर बाहर निकाला। चौबीस पर पहुंची सर्विसेज टीम। डबल ब्लॉक था, दिलेरी दिखाई और एक पॉइंट लिया। टाइम आउट समाप्त हो चुके हैं कर्नाटक टीम के, केवल सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अपने प्लेयर्स को, और शायद वो भी नहीं किया। डिफेंस हो गया है ये बॉल भी। ओ टच आउट का प्रयास था, अनुमान और अंदाजा सही नहीं लगा सके। ये पॉइंट मिलता हुआ कर्नाटक टीम को। वहां से एक्यूरेट पास तो बन गया था, लेकिन जो बॉल कांटेक्ट हुआ वो ज्यादा अच्छा नहीं हुआ। 23-24 का स्कोर है, कर्नाटक की सर्विस है 1-0 के सेट स्कोर से पीछे है सर्विसेज की टीम। और सब्स्टिट्यूशन यहां पर अपने ब्लॉक को मजबूती देने के लिए कर्नाटक टीम ने ये चेंज लिया है। रायसन आए हैं अंदर ब्लॉक को मजबूती देने के लिए, और इस बार कर्नाटक टीम का शानदार ब्लॉक अश्वल राय की बदौलत। शॉर्ट पास और पहले से उनको दिख गया था, बिल्कुल ब्लॉक के ऊपर, बॉल के ऊपर उनके हाथ थे, और सर्विसेज ने अपना दूसरा टाइम आउट भी ले लिया। 24-24 का स्कोर है। ये एक इंटरेस्टिंग मुकाबला बनता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय रेफरीज हैं और एक एक चीज पर निगाह रखी हुई है इन्होंने। सब्स्टिट्यूशंस अभी भी बरकरार हैं कर्नाटक टीम के द्वारा। 2 पॉइंट्स लगातार जो भी टीम लेगी उसको जीत मिलेगी इस दूसरे सेट में। तीन प्लेयर्स आगे हैं, अटैक लाइन के अंदर हैं। कॉम्बिनेशन यहां पर बन सकता है, और क्या सेटर बैककोर्ट करवाएंगे सेंटर से या आगे के प्लेयर्स को यूज करेंगे। सेंटर से बैकलाइन अटैक, ट्रिपल ब्लॉक जिसका कोई जवाब नहीं। जोन 6 से अटैक हुआ, 3 ब्लॉकर्स के बावजूद भी 1 अंक लेने में कामयाबी। तो एडवांटेज अभी सर्विसेज की टीम के पास है। ये आखिरी अंक हो सकता है अगर सर्विसेज लेती है इस पॉइंट को, लेकिन नहीं, अश्वल राय की रोटेशन आगे थी। खतरा रहता है जब इतना एक्सपीरियंस प्लेयर अगर आगे हो, उसको आप किसी भी फॉर्म में यूटिलाइज करें। वो हाई बॉल भी मारते हैं, शॉर्ट बॉल भी हिट करते हैं, बैकलाइन अटैक भी करते हैं, लेकिन अभी सबसे बड़ी चिंता यही
कि सर्विस सिंपल रखेंगे या जोखिम उठाएंगे, ये इनको डिसाइड करना है। ये किस चीज का फाउल दिया है? लाइन कट दे दिया। ये फाउल 10 मुकाबलों में किसी एक मैच में देखने को मिलता है। प्लेयर की लाइन कट हो गई और वो भी एक अनुभवी प्लेयर की। बॉल वापस लेके आएंगे। ये सर्विसेज की टीम है, कंबाइंड प्रैक्टिस करते हैं ये 12 महीने। लेकिन इस बार साइड ब्लॉक करके ऊपर से हिट किया बॉल को। जानते थे कि टीम के जो सेटर हैं उनकी ब्लॉक रीच कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम है शक्लेन तारिक की। बिल्कुल उनके ऊपर, हाथों के ऊपर बॉल को लेके हिट किया और बराबरी पर लेके आए स्कोर को। आसानी से 1 पॉइंट सर्विसेज के लिए। एक और चेंज और फिर से बराबरी। 27-27 का स्कोर है। आपको फर्स्ट पास ब्रेक करना पड़ेगा। एक बड़ा विकल्प दोनों टीम्स के लिए। टच करवाया बॉल को और धकेल दिया दूसरी तरफ। 1 पॉइंट और सर्विसेज के लिए। बिल्कुल एक्यूरेट पास था और पहले से ही उन्होंने अपनी इंटेंशन जाहिर कर दी थी। और जब हाथ था दूर से ही दिख रहा था कि वो ड्रॉप डालने वाले हैं, प्लेस करने वाले हैं। फर्स्ट पास अच्छा आएगा और फर्स्ट टेम्पो को यूज करेंगे, ये अच्छी योजना है। दोनों ब्लॉकर्स जंप किया उन्होंने, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई। गलती की इस बार। बॉल लिफ्ट कर रहे थे कर्नाटक के प्लेयर, आप उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते जब बॉल लिफ्ट कर रहे होते हैं, पास बना रहे होते हैं। यहाँ पर देखिए पास बना रहे थे और ब्लॉकर्स ने उनको रोकने की कोशिश की। डबल ब्लॉक का फायदा मिला। कर्नाटक की टीम आगे निकलती हुई इस दूसरे सेट में भी 30-29 का स्कोर हो गया है। अश्वल राय और कार्तिक टीम के अहम खिलाड़ी हैं, लेकिन ये ब्लॉक अश्वल राय ने किया। टाइम आउट टेकन बाय सर्विसेज।
फिलहाल 30-29 का स्कोर है और इनके लिए यहां से इस मुकाबले को जीतना थोड़ा आसान लग रहा होगा, बिकॉज सर्विस इनके पास है, बढ़त इनके पास है, लेकिन रिसेप्शन जो है वो सर्विसेज का है। साइड ब्लॉक करके हाथों पे टच करवा कर बाहर निकाला। बराबरी पर दोनों टीम्स। तीस का स्कोर है। फर्स्ट पास अच्छा है और ब्लॉकर्स के ऊपर से बॉल को हिट किया। इस खिलाड़ी की रीच अच्छी खासी है। अमूमन 3.65 3.55 का रीच रहता है ब्लॉकर्स का। इनकी बॉडी, इनकी रीच अच्छी खासी है। पॉइंट ले लिया है कर्नाटक की टीम ने। 32-30 के स्कोर से इस दूसरे सेट को भी जीत लिया। रिबाउंड उठा था, हाई पास बना, डबल ब्लॉक था, ब्लॉकर के हाथ से निकालकर बॉल को कोर्ट के बाहर भेजा। क्लोज मैच, 30-32 का स्कोर। सर्विसेज को शिकस्त मिली शुरुआती 2 सेट्स में और कर्नाटक इस मुकाबले में 2-0 की बढ़त ले चुका है। पच्चीस 22 और 32-30। कर्नाटक की जीत में अभी सर्विसेज खड़ी हुई है एक बड़ी दीवार की तरह, और इतनी आसानी से ये मुकाबला नहीं देने वाले। यहां से कमबैक का मौका है इनके लिए। तीनों सेट्स जीतने पड़ेंगे इन्हें और कर्नाटक को आवश्यकता है केवल एक सेट जीतने की। जो प्रिडिक्शंस हम बार बार कर रहे थे खासतौर से इस ग्रुप में, वो मुझे लग रहा है कि अगर कर्नाटक जीतती है तो कल सबके लिए एक तरह से क्वार्टर फाइनल रहने वाला है इस ग्रुप में, क्योंकि सभी टीम्स के पॉइंट्स बराबर रहेंगे। और इस परिस्थितियों में भले ही कल का जो मैच है इनका लीग मैच है, लेकिन वो मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फिलहाल तीसरे सेट के लिए तैयार हैं दोनों टीम्स। विपिन, इससे बढ़िया क्लोज मुकाबला देखने को नहीं मिलता, जहां पर 32-32 तक जा रहा है स्कोर। मजा आ रहा है इस मुकाबले में। बिल्कुल, और जितना मजा प्लेयर्स को आ रहा है और दर्शकों को आ रहा है, उतना ही मजा हम लोगों को यहाँ पे कमेंटेटर्स बॉक्स में इस गेम को फॉलो करते हुए मजा आ रहा है। अब देखते हैं क्या सर्विसेज करेगी वापसी। पहले 2 सेट गवाए जरूर हैं, पर सेकंड सेट में उनका प्रदर्शन बहुत ही बढ़िया रहा है। देखना पड़ेगा क्या उसको वो टिपिंग पॉइंट के उस पार ले पाएंगे
और क्या ये एक सेट जीत पाएंगे? और शुरुआत तभी होगी जब ये थर्ड सेट अपने कब्जे में करेंगे। और बढ़िया शुरुआत चिराग ने करी है यहाँ पे जोन 4 से सर्विसेज के लिए, और इसी पॉजिटिविटी के साथ उन्हें स्टार्ट लेना पड़ेगा और तभी बढ़ेगी सर्विसेज आगे। कल के लेवल की परफॉर्मेंस अगर आज वो दे पाते हैं तो इस कर्नाटका टीम को पड़ेगी मुश्किल। अश्वल राय, बढ़िया सेट एंड इमैकुलेट फिनिश। इंटरनेशनल प्लेयर in his own right representing Karnataka. Confusion at the net, and the official awards the point to services. Backline attack. Just touching the net on his way down. Good service. Karnataka from zone 4. Blockers were there, but getting lucky on that occasion. Off the block, outside the court. Both of them were there for the double block. Off the block, and the ball landing outside. Neck-to-neck battle. 2 points each. Superlative finish there on zone 2. Single blocker, Ashwal Rai, right down the middle. Capturing that ball. Realizing it was a short set, and with his arm extension, if he can keep track of the ball, Shikhar Singh had very little chance against him. At the other end from zone 2, Sahil now. Beautifully set by Saklen, and noticing that zone 2 was empty, placing it beautifully. Amazing block, amazing block. Very rarely do you see a single blocker being so effective against the spike. There you can see he was all alone. Number 4, Ashmatullah, climbing up tall. When you're a single blocker, you need to time your jump to perfection. Using Asmat again was Saklen. And that's sometimes the key role that the setter plays. Realizing that your attacker is in good flow, sending the ball towards him again, and this time it's a block out. Off Ashwal's hand. Using Ashwal, using that arm extension. What we call a first tempo attack. You can see Ashwal's first step already in play as the setter releases the ball. Ashwal supercharged there. Really happy with that service ace. Ashwal really needs to have a great third set if Karnataka wants to take this in 3. Six points each, the first 2 sets
to Karnataka. Amazing double block. Saklane combining with Vikas Man. Rejecting that attack. There you can see from zone 4, the ball was set for Tarun. But Saklane and Vikas had different plans. Reading that play to perfection. Good lift. Good lift, creating that opportunity for Tarun. Tarun Gowda likes playing out of that zone 4. And somehow he might not be one of the tallest guys on the court, but has amazing hang time. Ganesha with the serve. Placement over power. Beautiful dink there. Just above the blocker's reach and placing it right at the attack line. Azmat. Well read there by Chirag. Quick off the feet. Explosive strength there. Noticing the ball was traveling across and immediately reacting to that situation. You can see Chirag there. Immediately spotting that ball. For the first time now, Services taking the lead. In the first 2 games, it was all about Karnataka leading in the initial moments. And Services slowly and steadily trying to turn the tide. Tarun for Karnataka. Well done indeed. Catching up now with Services. They were 2 points down. And back-to-back points for Karnataka. Reading that play. Timing it just right in spite of that double block. Impossible, impossible. Notice the disguise when Saklane lifts this ball. Everyone expects it to go to the center attacker and then beautifully setting it up on zone 2. Vikas. Well done indeed. Short set, not allowing the blockers to come into play. He's the captain, Karthik, playing that captain's knock. Spiking it for the diagonal. Brilliant. Saklane setting it up for zone 4. Opportunity now down the middle. Splitting that block. 4th touch call by the official. Lack of game awareness there. And he should have sent that ball across here, Ashwal. Sometimes under pressure, you don't realize whether it's the 3rd touch or the 4th touch. Brilliantly done. No stopping Chirag there. Well created from zone 4.
Explosively executed by Chirag, an international player in his own right. And if you give him a single blocker to beat 9 out of 10 times, he's going to take that point. Saklain, the magic maker for services. No magic here. Back-to-back errors, both these teams exchanging points on service errors. Not the kind of mistake Vinayak would have wanted to make. Chirag now at the service line for services. 3 consecutive points. One side gifting the other, back-to-back. Substitution for services, a crucial substitution. The setter, Saklain, checking out, and the backup setter coming into play. Sanjulal. Let's see how that works out for services. Immediate impact. Sanju setting that ball up. There you can see him in action. And then when the center blocker does not arrive in time to support you, it's usually difficult for the blocking side. Good play by Ashwal. Striding in, and with that arm extension, he rarely makes a mistake. Just beyond the service line. 14 all. We just had an exciting game 2. And in this set as well, at the midway point, both teams separated by just 2. Services 15, Karnataka 13. कर्नाटक जो थी वो 13 से 14 पर आ चुकी है इस एरर के बाद, इस सर्विस में गलती के बाद, और अपने अंतर को वो बढ़ा के रखना चाहेगी अगर इस मैच में उन्हें बने रहना है तो। धमाकेदार स्मैश था इस बार जोन 6 से। कॉम्बिनेशन अच्छा, ओपन बॉल हो गया था। जो सेंटर ब्लॉकर थे, मिडिल ब्लॉकर थे, वो एक बार जंप करने के बाद दोबारा जंप करते इससे पहले अटैकर्स अपना काम करके चले गए। 16वां अंक मिला सर्विसेज की टीम को। चलो चलो। सेंटर में जोन 6 में प्लेस किया। ये हर अटैकर की फेवरेट जगह होती है अगर प्लेसमेंट की बात की जाए तो। और यहां पर जब बॉल गिरती है तो तीनों प्लेयर्स उठा सकते हैं इस बॉल को। देखिए, तीनों जो प्लेयर्स थे वो उठा सकते थे इस बॉल को, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और वॉलीबॉल जब खेलता है कोई प्लेयर, सीखता है, उस समय कोचेस यही बोलते हैं कि ऐसे बहुत से लम्हे आते हैं एक सेट में, एक मुकाबले में, जब 2 या 3 प्लेयर्स के बीच में बॉल गिर रहा हो तो आप उसको एफर्ट कीजिए, आप रुकिए मत। 3 में से या 2 में से एक प्लेयर तो उसको उठाएगा ही। ओपन पास था ये, लेकिन ब्लॉकर ने अंतिम लम्हों में
18-15 का स्कोर हो गया है। 3 पॉइंट्स का डिफरेंस बना लिया है यहाँ पर सर्विसेज की टीम ने, और इस मुकाबले में बने रहने के लिए ये सेट जीतना बेहद आवश्यक। टाइम आउट कर्नाटक ने लिया, दबाव में है। 2 सेट जीतने के बावजूद इस तीसरे सेट में इन्हें 3 पॉइंट्स का जो मार्जिन है वो सता रहा है। बढ़िया ब्लॉक, कंबाइंड ब्लॉक था इस बार, और आपस में तालमेल था। इन्होंने अपने मैन मार्क किए हुए थे, यहां से बेहतर दिखेगा। बॉल बना, एक ब्लॉकर ने जंप किया, दूसरा ब्लॉकर था वो अपने बाईं तरफ मूव किया। उन्होंने बॉल के सामने गए, हाथों को मूव किया, और 1 पॉइंट और। इस बार बॉल साइड ब्लॉकर के हाथ में लगी और कोर्ट से बाहर गई। 16वां अंक मिला कर्नाटक की टीम को। हाई पास था, डबल ब्लॉक था। अरे भाई बात मत करो मेरे भाई, आपस में लड़ते रहोगे यार, चुप रहो यार। हाई पास है, और कहां से बॉल हिट हुई है ये। बढ़िया डिफेंस था। 20-16 का स्कोर। देखिए कितनी हाइट थी बॉल में, डिफेंस हुई, उसके बाद प्लेस किया बॉल को जोन 6 पे। तो 4 पॉइंट्स का डिफरेंस बना हुआ है। सर्विसेज टीम इस लीड को लेके चल रही है। उनको मालूम है कि 1 या 2 पॉइंट्स की लीड से कोई ज्यादा प्रभाव पड़ता नहीं है। ट्रिपल ब्लॉक, लेकिन साइड ब्लॉक और सेंटर ब्लॉक जो है उसके बीच में जो गैप था उसको यूटिलाइज किया। आसानी से 1 अंक। ट्रिपल ब्लॉक, और इस बार कामयाबी मिली कर्नाटक की टीम को। थोड़ी मायूस जरूर होगी, बॉल हिट तो कर दी थी कर्नाटक टीम ने, लेकिन जबरदस्त ब्लॉक था वहां पर जिसकी बदौलत पॉइंट नहीं मिल पाए। अटैक में कामयाबी तो मिल रही है, लेकिन कन्वर्ट वो अंकों में नहीं हो पा रहा। या तो ब्लॉक आ रहा है बीच में, या फिर बॉल डिफेंस हो रही है। 18-21 का स्कोर है, और सब्स्टिट्यूशन लिया गया है। सिंगल ब्लॉक, पावरफुल स्मैश, और बदले में 1 पॉइंट। साहिल थे इस बार। बैक मीडियम पास था, सिंगल ब्लॉक था, ब्लॉकर के हाथ पे लग के बॉल कोर्ट से बाहर गई। जोखिम उठाना चाहते थे सर्विस पे, और ये अच्छी चीज भी गिनी जाती है कि आप तभी जोखिम उठाएंगे जब दिलेरी होगी, जब आपको मालूम होगा कि पॉइंट मिल सकता है, और जब आपके पास बढ़त होगी। सेफ सर्विस कराएंगे तो उससे आपके ओपोनेंट का मनोबल बढ़ेगा। ट्रिपल ब्लॉक,
लेकिन इस अटैक का कोई जवाब नहीं। चिराग थे इस बार अपनी टीम के लिए, बॉल को डिफेंस किया, और जब बॉल डिफेंस होती है उस पे अटैक करने का मजा ही कुछ और होता है। अपनी खुद की डिफेंस की हुई बॉल पे पॉइंट लिया और 23वें अंक पर पहुंचाया अपनी टीम को। 19 पर है कर्नाटक। फिलहाल 23 अंक तक पहुंच चुकी है सर्विसेज टीम। ये बॉल डिफेंस हो सकती थी, हल्का टैप किया था, प्लेस किया था साइड ब्लॉकर के ऊपर से। अंतर कम किया, 20 पर पहुंच गई है कर्नाटक, और सब्स्टिट्यूशंस शायद देखने को मिल सकते हैं। कॉम्बिनेशन, किसी ब्लॉकर ने जरूरत महसूस नहीं की कि वे इस अटैकर को रोकें। एक्सीलेंट फर्स्ट पास, बढ़िया लिफ्ट और बदले में 1 पॉइंट। 24वां अंक मिलता हुआ सर्विसेज की टीम को। गलती की और 1 अंक अपने ओपोनेंट को दिया। फिलहाल सब्स्टिट्यूशन लिए गए हैं कर्नाटक कोच के द्वारा अपने ब्लॉक को मजबूती देने के लिए। जोखिम उठाए बिना ये सेट नहीं जीत सकते थे। जोखिम, और सर्विसेज ने 25-21 से इस सेट को जीतकर वापसी का ऐलान कर लिया है। तीसरा सेट था ये। 2-1 से अभी भी कर्नाटक की टीम आगे है। रिस्क लिया था आखिरी पॉइंट पे, वापसी करने की कोशिश थी इस सेट में, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। और यहां से कर्नाटक की दिक्कतें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। उनके लिए इस मैच को जीतना बेहद आवश्यक है। अगर हारते हैं तो अंतिम 4 में पहुंचने की संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाएंगी, क्योंकि इनके ग्रुप में इन्हें अपने पहले मुकाबले में शिकस्त मिली थी। कल के अगर मुकाबलों की बात की जाए तो गुजरात ने अपना मैच जीता, तमिलनाडु ने जीता, हरियाणा ने जीता और सर्विसेज ने अपने मुकाबले में जीत दर्ज की। ये इस मुकाबले का सेट स्कोर है। 25-22 से पहले सेट को जीता कर्नाटक ने, 32-30 से दूसरे सेट को जीता, और तीसरे सेट में उन्हें 25-21 से शिकस्त मिली। और ये है इस मुकाबले के तीसरे सेट के हाइलाइट्स। किस तरीके से सर्विसेज टीम वापसी करने में कामयाब हुई। फर्स्ट पास में ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ा सेटर्स को मूवमेंट में। ये तीसरे सेट के हाइलाइट्स हैं। आपको बता दें, ये जो मुकाबला चल रहा है ये पूल बी का चल रहा है, जहां पर सर्विसेज और कर्नाटक की टीम आमने सामने है। कर्नाटक की टीम को कल शिकस्त मिली थी, सर्विसेज को जीत मिली थी। एफर्ट किया दोनों टीम्स ने, लेकिन तीसरे सेट में कर्नाटक को हार का सामना करना पड़ा। और फिलहाल यहां से अब
नई योजनाओं के साथ दोनों टीम्स आएंगी। ये मुकाबला बेहद इंटरेस्टिंग मुकाबला बन चुका है। Services registering the first point on the board in this set 4. What a comeback by Services. And Karnataka will be worried because they've done this once before yesterday, taking the first 2 sets and then losing out on set 3, 4 and 5. Are we going to see a repeat of the game from yesterday, or is Karnataka going to write a different narrative for itself? This time, Chirag wanted to get the ball going for Services, but effectively met by that double block. There you can see on zone 4, Chirag was all set, but that double block right in his face, and the ball landing inside play. Registering their first point, Karnataka. The captain with a power-packed serve. Living up to that badge, living up to that C on his armband. What a service. Jump serve, the ball trajectory down. And even the libero was struggling to control it. Karthik once again. And this time the ball drifts just a bit further. Unforced error, not the kind of mistakes Karnataka would want to make. Chirag with that jump serve, well judged there at the back line. You can see just jumping out of the way. 3 points each. Karnataka will do well to keep pace with Services. Nice attempt there by Karnataka, but the power-packed spike just a little too much. Ashwal, 3 meters and 85 centimeters. That's the reach of this gentleman. Commanding presence at that center attacker position. This time, Karnataka have only themselves to blame. They had ball possession, should have gone for an offense. And giving that opportunity to Services, and Services capitalizing. Sahil for SSCB. This time successful. Changing the flow of offense. The blockers expecting the ball to be set for the center attacker, and then beautifully set on the side, coming from behind.
Beautiful execution there, using the fake from Ashwal. Ashwal being the first line of attack. There you can see Ashwal comes up for the fake and then from behind, not allowing the defense to reset. The most crucial player for Karnataka, Ashwal. Beautiful placement, beautiful placement. Sahil was so aware. That's what you need to compliment these players for, the game awareness that they're able to display under pressure, going up, noticing that there is a vacuum on zone 2, placing that ball brilliantly. Asmatullah for services. Reception advantage. Can Karnataka capitalize? This time, no mistake by Mr. Gowda. Number 6 for Karnataka, Tarun Gowda. That charges the team when you see a player giving it his 100%, raises the spirits of the rest of the team. It's a 1-point lead for Karnataka. And this time, Chirag from zone 4. And that's what you want as an attacker. You want to see some space between the two blockers. And noticing that space, capitalizing on it. This time successful in taking a touch out. Shikhar and Chirag trying to be the wall there on zone 2, not very effective. Not the kind of mistake you want to be making, Tarun. Karnataka can ill afford to lose the momentum. This is the time in the third set when services were able to pull away and create a 3-point advantage. And immediately the same mistakes as last time at 8 points each. A relatively easy point gifted away to services. Opportunity for Karnataka, good first pass received, and immediately you can see the advantages that they get. So if you get an easy serve to receive, you get enough time on the ball to receive the ball well. Give the setter enough opportunity to find the right attacker with a fake perhaps. That creates an easy attacking opportunity. 9 each. Neck-to-neck battle between these two sides. And that dipping service, forcing an error out of the libero. Not something that you expect. Usually the libero is the most efficient defensive option on your team. And on this occasion, the service too good for him. This time it was a short set right down the middle. India international there, Ayush, a center attacker. So fast that the defense didn't get a chance to outstretch their arm. Chirag.
This time confusion there in the attack line for services. They had an opportunity, they got the ball back. There you can see they had the opportunity, had enough time to set this up really well, but confusion. Expecting a wave to come from behind, but on this occasion, the players in the backcourt were hoping for a finish from the attack line. प्लेयरों को बोलो रेफरी के पास आने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जब फाउल होगा दे देगा, जो भी जजमेंट होगा दे देगा अपने से, ठीक है? तो टेल देम नो नीड टू कम हियर अगेन एंड अगेन. Asmatullah. What a powerful spike. Neck to neck battle, 11 points each. Very little to separate these two sides. Ayush. And that's what happens when you give such an easy opportunity for reception, able to create the right kind of move with the right kind of deceit, and finally Ganesha finishing it off for Karnataka. Varun GS. Once more reception pressure. Not having a particularly good day in office, the libero for services. Binoy Balchandran, usually very efficient. Sorry, that was Deepu. And now checking in is Binoy. Clean ace. 14-11. Just dipping in, and that's what you need to keep in mind. The rotations on the ball, if the ball is spinning forward or is it spinning backward, and depending on that, it's going to either float or it's going to sink. And this time Sahil sends that ball wide. Good opportunity, nicely set on zone 2. Just sending that ball wide. And services has been missing out on Saklain Tariq. Saklain Tariq, their captain, talisman, and the most important player, being the setter of this side. And right from the start of this particular set, Saklain has been setting out. And that's given an opportunity for Karnataka to build some momentum and find their way into this game. Setter, definitely the most crucial player in your lineup. And we hope it's not an injury, and it's not a very serious injury. Even if services was to lose this contest, there still is tomorrow, day after, the semis and the finals. And if services want to mount a good charge, they definitely will require Saklain Tariq services. Opportunity now. Brilliantly blocked by Ashwal. Amazing response by Ashwal. There you can see the passion. When you pulled off a point for your side and put them in such a commanding position. 16-11, up by 5. 2 points back to back. That's the kind of play you require. Off the block now. Services mounting a comeback with Ashmatullah. 4-point lead, Ashish. Welcome back into the commentator's box. थैंक यू विपिन. ये मैच वाकई ही दोनों टीम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. खास तौर से कर्नाटक के लिए जीत बेहद अहम है.
कॉम्बिनेशन अच्छा है इस टीम का, ये टीम दिलेरी दिखा रही है। फर्स्ट पास जितनी बार भी अच्छा मिलेगा, ये अपना दमखम दिखाएंगे। अश्वल राय सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं टीम के। इनका और कार्तिक का जो कॉम्बिनेशन है, डायगोनल खेल रहे हैं एक दूसरे के। जब अश्वल पीछे जाते हैं, कार्तिक आगे रहते हैं नेट पे। जोन 4 से अटैक, इस बार कोई जवाब नहीं सर्विसेज टीम के पास। डबल ब्लॉक के बावजूद भी यहां पर पॉइंट्स लेने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। 18 पर पहुंची है टीम, 12 पर है सर्विसेज। सेलिब्रेशन देखिए, लेकिन अभी सेलिब्रेशन का समय आया नहीं है। ट्रिपल ब्लॉक था, सर्विसेज ने यहां पर पावरफुल स्मैश के जरिए एक पॉइंट लिया। 3 ब्लॉकर्स थे। जोन 6 से बैकलाइन अटैक। गलती थोड़ी कम करनी पड़ेगी आपको, एक एक पॉइंट अहम है। अगर ये सेट कर्नाटक की टीम जीतती है तो इस मुकाबले पर अपना कब्जा करेगी, ये बात सर्विसेज को ध्यान में रखनी पड़ेगी। सेंटर ब्लॉकर कंबाइन नहीं हो पाए कार्तिक, थोड़ा सा यहां पर रुके, जिसकी बदौलत जो गैप था उसको यूटिलाइज किया। और यहां से बॉल डिफेंस होना बहुत मुश्किल काम होता है, बिकॉज ये पोजीशन ब्लॉक के पीछे की रहती है। 19-14 का स्कोर है। सब्स्टिट्यूशंस दिए जा रहे हैं, सारी योजनाएं अब लगानी पड़ेंगी। कार्तिक अभी आगे हैं, फर्स्ट स्टेप को यूटिलाइज कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन, ब्लॉकर्स को कार्तिक के ऊपर जंप करवाया और फिर यहां पर देखिए ब्लॉकर्स पहले जंप कर गए और इसका फायदा मिला सर्विसेज के विरुद्ध खेल रही कर्नाटक टीम को। 20वां अंक हासिल किया उन्होंने। करारा स्मैश था इस बार। चिराग थे सर्विसेज टीम के। डबल ब्लॉक के बावजूद इतना तेज तरार स्मैश। सूझबूझ से टर्की, एक अंक तो बनता है इनके नाम का, जो इस तरीके की प्लेसमेंट की बदौलत ले सकते हैं। जोन 6 खाली था और यहां पर प्लेस किया। 2 प्लेयर्स आए बॉल को उठाने के लिए, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई मिला कर्नाटक को। नेट कॉन्टैक्ट, नेट कॉन्टैक्ट हुआ है और अपने रिदम को ना ब्रेक करें। कर्नाटक टीम ऑलरेडी आगे चल रही है और अक्सर खिलाड़ी जो हैं ये गलती कर बैठते हैं। इनकी टीम के पास लीड है, रिदम बना हुआ है, ये कंटिन्यूटी मेंटेन रखेंगे तो इनके लिए फायदा रहेगा। ये पॉइंट किसको मिलेगा ये देखना होगा। ये पॉइंट सर्विसेज को मिल चुका है क्योंकि नेट कांटेक्ट किया था कर्नाटक के ब्लॉकर्स ने।
पावरफुल सर्विस, मजा आ गया इस सर्विस को देख के। चिराग हैं ये सर्विसेज टीम के, बहुत ज्यादा पावर थी और स्पीड थी और मजबूर किया कर्नाटक के कोच को कि वे एक टाइम आउट लें। इक्कीस 17 का स्कोर है। सर्विसेज की टीम फिलहाल 4 पॉइंट से पीछे है। ये सेट जीतना है वापसी के लिए इनको। अवे बॉल और डिफेंस करके ही आप जीतेंगे। अपनी सर्विस पे जितने पॉइंट्स लेंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। कहां से बॉल उठी, किधर से लिफ्ट हुई, सिंगल ब्लॉक था, ब्लॉकर के हाथ से लग के बॉल कोर्ट के बाहर गई। बढ़िया डिफेंस सर्विसेज का। दूसरी बार भी बॉल उठ गई और कामयाबी मिली इस बार। काबिले तारीफ परफॉर्मेंस इस टीम का। अशफतुल्लाह थे इस बार जोन 4 से डबल ब्लॉक को पूरी तरह से चौंकाया और 1 पॉइंट लेने में कामयाबी। तो 4 पॉइंट्स का डिफरेंस था, अब 2 का हो गया है। सर्विसेज यहां पर हावी होती हुई अपने ओपोनेंट पे। जो 4 पॉइंट्स का डिफरेंस था उसको धीरे धीरे अपनी सर्विस करके अब महज और मात्र 1 पॉइंट का कर लिया है। 20-21 का स्कोर, ये क्रूशियल पॉइंट। नेट कांटेक्ट ब्लॉकर्स का नहीं बल्कि कर्नाटक के अटैकर का इस बार। रायसन का नेट टच था ये। और इस मुकाबले में 5 सेट भी लग सकते हैं, ये अंदेशा और अनुमान लगाया जा सकता है। अब एक अंक के लिए इतना ज्यादा संघर्ष। गलती की लेकिन काबिले तारीफ इनका परफॉर्मेंस। सर्विस की, डिफेंस किया पीछे, बराबरी पर लेके आए। 17-21 स्कोर था, 21 बराबर पर लेके आए और अब 22-21 का स्कोर। पावरफुल स्मैश, कोई जवाब नहीं। ये बॉल वापस नहीं आ सकती थी। इतनी ज्यादा पावर देखकर वापस आने का सवाल ही नहीं उठता। डिफेंस एक बड़ा हथियार है सर्विसेज टीम का। और टैपिंग से अब काम नहीं चलेगा, आपको पावरफुल स्मैश लगाने पड़ेंगे।
2 बार बॉल उठाई और तीसरी बार करारा प्रहार सर्विसेज टीम का। इस बार था जोन 6 से, देखिए टैप किया था, बॉल उठी और इसका कोई जवाब नहीं। 23-22 का स्कोर। सर्विसेज की टीम एक बार फिर आगे इस मुकाबले के इस सेट में। डिफेंस एक और डिफेंस और यहां से वापसी की सर्विसेज टीम ने। आप डिफेंस करके जिस बॉल को हिट करते हैं, आप में ऊर्जा जो है वो दोगुनी हो जाती है। देखिए डिफेंस किया, उठे और फिर जोन 6 से अटैक किया। काबिले तारीफ परफॉर्मेंस, प्रशंसा करनी पड़ेगी चिराग सुरेश कुमार की। और ये लास्ट पॉइंट हो सकता है इस सेट का अगर सर्विसेज की टीम लेती है। डबल ब्लॉक है और सर्विसेज ने इस सेट को जीत लिया है। कमाल का परफॉर्मेंस इस टीम का, दिल जीत लिया यहां पर मौजूद दर्शकों का। अपने डिफेंस की बदौलत, अपने अटैक की बदौलत। और ये वो विनिंग पॉइंट था इस सेट का, चौथे सेट का। यानी अब 5वें सेट में जाना पड़ेगा। टॉस होगा, 15 पॉइंट्स के लिए संघर्ष करेंगी ये दोनों टीम्स। पच्चीस 22 और 32-30 से 2 सेट जीते। उसके बाद सर्विसेज ने 25-21 और 25-22 से तीसरा और चौथा सेट जीता। और अब डिसाइडर का इंतजार।